Hey guys, welcome or welcome back to my channel. Welcome if you're new and welcome back if you're a subscriber. So yes, this video is related to how did I prepare myself before going to the interview? How did I got to know कि हाँ finally I am ready for it and now I don't need to work anymore. And obviously this is a requested video and I'm so sorry that I'm uploading this today. मैंने बोला था that I'll upload it by Sunday, but I'm uploading it today. अब वो भी शाम तक ही जाएगा because I'm recording it today only. I'm really sorry about that, but you won't believe मेरी कल भी क्लास मैम ने मतलब ऐसा अरेंज कर दिया because we are having our mid review in the next week. So in order to prepare us better, she like kept a class yesterday as well. So yeah, that's why I could not make any video yesterday. So I'm making it today. Oh my god, मेरी earring. Let it be. It's okay. मैं ये वीडियो आज भी नहीं बनाती लेकिन मैंने रिप्लाई किया था बाय संडे मैं ये वीडियो डाल दूंगी तो आई एम हियर बिकॉज वो कमेंट इतना प्यारा और इतना बड़ा सा था दैट वो कमेंट देख करके ना मेरे चेहरे से स्माइल नहीं जा रही थी लाइक थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव गाइज आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई थैंक यू इन वर्ड्स it is not enough. Like if I just say thank you, it's not enough actually, but that's all I can do, right? And इतना लंबा चौड़ा कमेंट देख करके ये दिखाता है कि आप कितना स्ट्रेस्ड हो. यू डोंट नीड टू स्ट्रेस एट ऑल. इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट एन इंटरव्यू. इफ़ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश ना तो आप इजीली कर लोगे. जाने से पहले आई वॉज वेरी वेरी नर्वस, बट जब एक बार दे करके आ गई, थर्ड राउंड तक हो गया था ना, तो उन्होंने वही क्वेश्चंस पूछे मेरे बारे में. मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं थे. इट वॉज जस्ट अबाउट मी. एवरीथिंग वॉज अबाउट मी. तो अगर आपको अपने बारे में तो पता ही है ना, जस्ट लर्न हाउ टू कम्युनिकेट. ठीक है, इतना कि आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया, आपने कितना टाइम लिया, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होता है. अगर आप जितना स्ट्रेस लोगे, जितना चीज़ के ऊपर फोकस करोगे ना, वो चीज़ उतनी बड़ी बनेगी. ट्राई टू टेक इट लाइट. ट्राई टू थिंक ऑफ इट एज इफ इट इज़ नथिंग. देन यू विल बी एबल टू मेक इट. लाइक इतना ज़्यादा बिना स्ट्रेस के. ठीक है, तो डोंट स्ट्रेस इट टू मच. डोंट मेक इट टू बिग. Look at it as if it is nothing, and then you will excel in it. Okay, so now without any more delays, let's get into the video. So first of all, what did I do? See, I was in Frankfurt. I used to go to institute, and in there जो भी questions मतलब कराते थे, और of course वो लोग वहाँ पे बोलते थे that speak about this topic, speak about that topic, वहाँ पे आके बोलना. and also we were told about the answers कि इस question का answer ऐसे होगा, उस question का answer. You won't believe when I tell you this thing that all YouTubers on YouTube who are teaching you regarding this cabin crew के questions and who are like कि these questions were asked and answer to these questions are these, they all are true. That's what I was taught in there, Frankfurt. So if you are referring to YouTube, it's a very good platform, and that's what I did. मैंने बहुत basic questions prepare किए थे. सबसे पहले तो अपना introduction. देखो, अपना इंट्रोडक्शन ना मैंने पहले जो मतलब मेरा जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है कि कैसे बनाओ अपना इंट्रोडक्शन, उसमें बता रखा है. If you guys don't know, then do check out that video. It is very helpful and I'm sure it will help you to prepare with your introduction. Okay, so what is in there कि सबसे पहले तो this is very, मेरे से तो पहले इंट्रोडक्शन पूछा नहीं गया था. It was in my second round इंट्रोडक्शन वाला. So it is not like they are going to judge you on the basis of your introduction, but make it unique so that the HR can see efforts in you, that how desperate you are to be here. And when the HR will feel that how passionate and desperate you are to be here, then it is for sure that they won't reject you at all. All they want is a good communicator and a passionate candidate who can like contribute to their company's success, right? So that's all. Prepare your introduction very well. Make it at least 1 minute long, but please don't go beyond that, because if it is longer than that, तो फिर the HR might ask you to keep your mouth shut and cut off you in the middle. So make sure that it is less than 1 minute and at least 50 seconds का तो बना ही लो. Okay, and then after that उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ ऐड करो, ऐसे वर्ड्स ऐड करो, बट इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बना देना कि आपको उस चीज़ के बारे में आइडिया ही ना हो. एंड आप लाइक मैं इंट्रोडक्शन पे इस चीज़ को लेंथन नहीं करूँगी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो कि इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है और क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी है. तो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इंट्रोडक्शन वाला थिंग तो रेफर टू दैट वीडियो, और एल्स फिर मैं इस पार्ट पे नहीं बोल पाऊँगी. राइट, आफ्टर इंट्रोडक्शन फर्स्ट इंट्रोडक्शन पे काम करो. ओके, और क्वेश्चंस पे नहीं, पहला अपना इंट्रोडक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना लो कि यू शुड बी श्योर एंड वो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए. और पता है
किसी भी आंसर को याद नहीं करो. इफ़ यू विल लाइक लर्न, तो एक भी वर्ड भूलने से आप पूरा सेंटेंस भूल जाओगे. मेक ईच एंड एवरी थिंग रिलेटेबल एंड रियल. आप अपने बारे में बात करने में नहीं भूलोगे. इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, तो यू कैन लाइक 4-5 पेज बोल सकते हो, लाइक इफ़ इट इज़ अबाउट यू, बिना भूले, राइट. एंड इफ़ यू विल लर्न, तो आप एक वर्ड भूलने की वजह से पूरा सेंटेंस, दिस हैपन्स विद मी. तो इसीलिए मैंने जब अपना प्रिपरेशन किया था, तो मैंने कुछ भी याद नहीं किया था. हर एक आंसर को खुद के वे में उसको क्राफ्ट करो और खुद से रिलेटेबल बनाओ, ताकि आप अगर एक वर्ड भूल रहे हो तो आप उसका कोई भी सब्सटीट्यूट वहाँ पे लगा करके, और यू कैन कंटिन्यू विद योर आंसर. इफ़ यू विल लर्न, देन इफ़ यू आर फॉरगेटिंग वन सेंटेंस और वन वर्ड, then it is like you are done. Okay, so please make sure not to learn. This is a very big no. आप किसी भी यूट्यूबर को देख रहे हो, and please do not copy those answers, because you won't believe, but they all are aware कौन सा यूट्यूबर ने क्या आंसर दिया है और कौन सा आंसर रिपीटेड है. एंड इफ दे गेट टू नो दैट यू हैव नॉट पुट एफर्ट, योर एफर्ट इन मेकिंग आंसर्स, एंड यू जस्ट फेकिंग इट, कहीं से याद करके, कहीं से सुन करके आकर उनको सुना रहे हो, बिलीव मी गाइज, दे आर HR. ये उनका जॉब है, सालों से दे हैव बीन डूइंग दिस. तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट फूल दैम. क्वेश्चन एंड आंसर्स आप यूट्यूब को रेफर कर सकते हो, और एल्स इफ़ यू वांट मी, प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. अगर आप चाहते हो तो मैं पूरा लिस्ट आपको एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस की लिस्ट में आपको ऐसा क्वेश्चंस दे दूंगी प्रिपेयर करने के लिए, सो दैट आप सिर्फ उनको प्रिपेयर करके जाओ, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी इनफ. ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टेक्निकल टाइप के हैं, लाइक वाई कैबिन क्रू, वाई शुड वी हायर, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर समथिंग विच यू शुड बी प्रिपेयर्ड ऑफ. एंड ये मोस्टली थर्ड राउंड में पूछे जाएंगे, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट एक्चुअली यू नेवर नो. मैं जब गई थी तो आई वॉज थिंकिंग कि इन द फर्स्ट राउंड इज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्शन राउंड, एंड मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, बट नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट, इट वॉज वेरी डिफरेंट. तो वो अगले बार में, अगला जब वो इंटरव्यू लें, तो उसमें क्या चेंजेस लाएं, क्या बदलाव कर दें, यू नेवर नो, इट इज़ अप टू दैम. सो यू आर द वन हु हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड इतना अच्छे से कि वो चाहे जहाँ से भी पूछे, चाहे कुछ भी पूछ ले, यू आर नॉट गोइंग टू गेट पैनिक्ड. मैं इस माइंडसेट के साथ गई थी दैट मेरा पहले इंट्रोडक्शन होगा, बट नहीं हुआ, तो इट वॉज फाइन, बिकॉज मैं खुद को प्रिपेयर करके गई थी विद ऑल द बेसिक क्वेश्चंस. योर फेवरेट डेस्ट, देखो, वॉट यू नीड टू नो अबाउट योर सेल्फ. अपना रूटीन अच्छे से याद कर लो, अपनी मम्मा का, पापा का, अपने मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका रूटीन याद कर लो. इनफैक्ट चाहे वो तुम्हारी दादी का पूछे, चाहे दादा का पूछे, किसी का भी पूछे, चाहे नानी का, चाहे नाना का, किसी का भी पूछ सकते हैं. एंड योर बेस्ट फ्रेंड, मुझसे मेरे बेस्ट फ्रेंड का रूटीन पूछा था. दो आई डोंट हैव एनी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड से लाइक आई डू हैव, बट इट इज़ नॉट लाइक वी आर नॉट इवन दैट क्लोज, एंड आई डू नॉट टॉक टू हर दैट मच. तो मैंने अंदाजे में मैंने बोला कि मैम, एज आई टोल्ड यू, वी डोंट टॉक दैट मच, सो आई डोंट नो व्हाट हर रूटीन इज़, बट शी वाज लाइक स्टिल यू मस्ट हैव एन आइडिया. तो फिर मैंने खुद से ही गेस करके कि मैम, एज आई सी हर रील्स ऑन सोशल मीडिया दैट शी गोज़ आउट टू कैफेज एंड एवरीथिंग, and also she uploads videos with her brother, so I believe that they both have great bond. ऐसे करके मैंने कुछ भी बोल दिया. तो एक आइडिया रख करके लेके जाओ, एक साइड बाय साइड लेकर के चलते रहो, दैट इफ़ दे आस्क यू देन यू शुड बी रेडी. और आई बिलीव कि ये जो रूटीन वाला क्वेश्चन है ना, ये HRs का फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो प्लीज़ इसके ऊपर अच्छे से काम करके जाना. एक तो आप 2 तरीके के क्वेश्चन पे काम करो. पहला तो वो ये पूछेंगे आपसे फ्यूचर, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप क्या करोगे, तो आप अपनी अर्निंग से क्या करोगे, आपकी जो पहली सैलरी होगी उससे क्या करोगे. एंड मोस्टली क्वेश्चन पास्ट फॉर्म में होते हैं, पास्ट टेंस फॉर्म में, कि आई वुड हैव डन दिस. दे आस्क यू क्वेश्चन लाइक कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा मुश्किल सिचुएशन आया था, देन हाउ डिड यू हैंडल दैट. तो एट दैट टाइम यू विल हैव टू टॉक इन पास्ट टेंस फॉर्म कि आई डिड दिस, आई डिड दैट. तो प्लीज़ अपनी पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस दोनों अच्छे से काम, मतलब उस पर काम कर लो, उसको प्रिपेयर कर लो. एंड अलॉन्ग विद द रूटीन वाला, सबका रूटीन अच्छे से प्रिपेयर कर लो, लाइक विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड फ्लुएंसी. देखो, अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक बना रहे हो 3-4, बट यू आर फ्लुएंट, देन इट इज़ फाइन. बट इफ़ यू नॉट फ्लुएंट, आप अटक अटक करके बोल रहे हो, बट यू आर नॉट मेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तो यू आर नॉट सेलेक्टेड, बिकॉज ऑल दे वॉन्ट इज फ्लुएंसी. Literally, trust me. Like if you're making minor mistakes, they won't make it a big issue. They will let it slide. But if you're not fluent, then it is a problem. Work on your fluency, work on your grammar as well, because आगे जाके आपका ही फ़ायदा है. Okay? एंड रूटीन पे काम करने के बाद नेक्स्ट अपने बारे में अच्छे से जान लो. व्हाट आर योर फेवरेट थिंग्स, अपनी सारी फेवरेट चीज़ों पे आंसर बना लो. दे कैन आस्क यू एनीथिंग. व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, व्हाट इज़ योर फेवरेट thing to do when you are free, what is your favorite festival,
और व्हाट इज़ योर फेवरेट शो एंड वाई. नॉट ऑलवेज टेल कि ये चीज़ मेरी फेवरेट है, बस क्यों है ये भी बताना है. और व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ डू यू लाइक टू वेयर, और व्हाट इज़ योर मॉम्स फेवरेट. मतलब पता है ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर करके जाओ. एंड आफ्टर दैट कम्स टेक्निकल कि आप कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हो, और हम आपको क्यों हायर करें, आपकी क्वालिटीज़, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस. इट इज़ ऑल अबाउट यू. तो अपने बारे में खुद मतलब अच्छे से जान लो. ऑब्वियसली वी नो, बट इंग्लिश में एक बार उससे प्रिपेयर कर लो. यू वोंट बिलीव, मैंने सिर्फ जैसे मान लो कल मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने आज दोपहर तक ही देखा था कि मुझे क्या एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है. उसके बाद फिर मैंने रख दिया कि अब मैं नहीं पढ़ूंगी. बिकॉज व्हेन यू कीप ऑन रिविंडिंग थिंग्स ना, तो मैसअप हो जाता है पूरा. एग्जाम से पहले कभी नहीं पढ़ना चाहिए. जितना तुमने उससे पहले तक याद किया है, इट इज़ बेस्ट. एक दिन में पढ़ के क्या कर सकते हो तुम, नथिंग. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, यू वुडंट बिलीव, मैंने सिर्फ एक हफ्ते पहले से प्रिपरेशन सीरियस होकर के कि हाँ अब तो इट इज़ जस्ट इन अ वीक. तो एक महीना हमें हो जाता है, ठीक है. इफ़ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो आप इजीली आंसर्स बना सकते हो. एंड इफ़ यू नो हाउ टू मेक आंसर्स, देन यू आर सेलेक्टेड गाइज. यू डोंट नीड टू स्ट्रेस सो मच. एंड ऑब्वियसली मैंने अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ही सबसे अलग आंसर बनाना होता है. क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि दे आर ऑल नो कि कौन सा आंसर कहाँ से है. यूट्यूब पे जितने भी आंसर थे ना, आई बिलीव उन लोगों ने सब देख रखा होगा, उनको सब पता है. तो इसीलिए खुद के आंसर्स को क्राफ्ट करो. मैंने अपने हर एक आंसर में चेंजेस लाए थे. मैंने खुद को ना मतलब सारे आंसर को खुद से रिलेट किया था. एज आई हैव टोल्ड यू कि माई फादर वॉज इन आर्मी, तो आई हैव बीन टू डिफरेंट प्लेसेस. तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ में ये डाल दिया कि मैं अलग अलग जगहों पे गई हूँ, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड्स के लोगों से मिली हूँ. तो I know how to communicate with them, and I believe that it is my strength that I have that ability to communicate to people from different cultural backgrounds. Okay, and weaknesses में मैंने डाल दिया that I always keep on cleaning things, और मुझे सब कुछ एकदम मतलब चीज़ें जगह पे चाहिए. एंड when they are not on their places, तो मुझे वो चीज़ स्ट्रेस करती है. तो मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो I will instantly get up leaving that task, and पहले वो चीज़ जगह पे रखूँगी और उसके बाद फिर आकर के. तो ये चीज़ ना मुझे स्ट्रेस देती है दैट क्यों मैं ही क्यों करती रहूँ, प्लीज़ और भी लोग कंट्रीब्यूट करो. एंड आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू वर्क अकॉर्डिंग टू मी, राइट. तो इट इज़ वेरी बेसिक. प्लीज़ डोंट स्ट्रेस सो मच, इट इज़ नथिंग, ठीक है. इफ़ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर तो सब हो जाएगा. जस्ट अपनी इंग्लिश पर काम करो, फ्यूचर टेंस में बात करना सीख पे काम करो, और पास्ट टेंस में बात करने पे काम करो, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस आर इन दैट फॉर्म ओनली. और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द इंटरव्यू राउंड्स, कि अभी फ़िलहाल कैसे वो लोग ले रहे हैं इंटरव्यू. फर्स्ट राउंड कैसा है, सेकंड कैसा है, थर्ड कैसा है, एंड फोर्थ कैसा है. ओके, तो आप टेंशन नहीं लो. एंड इफ़ यू वांट मी टू लाइक आपको क्वेश्चंस दे दूँ तो मैं वो श्योरली दे दूँगी. अगर मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाऊँगी तो मैं शॉर्ट वीडियो ही दे दूँगी. एंड इंटरव्यूअर से आपको एक कॉन्वर्सेशन बनाना है. यू विल हैव टू टॉक टू दैम. चिल, दे आर जस्ट हियर टू लुक एट हाउ यू कम्युनिकेट, how good you are at making conversations. बात ही करनी है सिर्फ. And if you will be good at it, then it is fine. Okay, don't stress so much. And yeah, this is it for today. I prepared myself from YouTube only, and obviously I used to take classes, so I was aware of what kind of pattern questions are going to be there, and that was the thing which was on YouTube. Same, no difference, literally no difference. वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे थे उन सब चीज़ों के आंसर्स यू विल गेट ऑन यूट्यूब. जस्ट ट्राई टू फ्रेम दैट इन योर ओन वे. डोंट कॉपी एनी आंसर. दिस इज़ अ वेरी की पॉइंट. डू नॉट कॉपी एनी आंसर. आप आंसर सुन करके हाँ ठीक है याद कर लिया, नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वहाँ पे इतना नर्वस हो जाते हो ना कि याद की हुई चीज़ें तो आप भूल ही जाओ. इसीलिए प्लीज़ रिलेट ईच एंड एवरी आंसर. जब खुद के ऊपर से रिलेटेबल होंगी ना वो आंसर, तो आप एक वर्ड भूल रहे हो तो यू कैन ऐड एनी सब्सटीट्यूट, एनी लाइट वर्ड, क्योंकि हर एक वर्ड का कोई ना कोई सब्सटीट्यूट होता है. तो यू कैन कंटिन्यू. बट इफ़ यू विल लर्न एंड देन फॉरगेट, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. तो आई विल सजेस्ट प्लीज़ डू नॉट कॉपी एनी आंसर. Hope this video was useful to you, and if it was, then do give a thumbs up, and if it was not, then do let me know. And if you want questions as well, to please let me know in the comment section. I will provide you with questions as well. And yeah, this is it for today. Do give a thumbs up, subscribe, and I will see you guys very soon. Until then, bye and take care.